to start and deliver their lecture. Please, Ms. Preeti, you start. Thank you, sir. And I am thankful to Sports Authority of India and Wushu Association of India to giving me this opportunity to deliver my lecture on this page today. Today's my topic is about technical requirements of optional events. All you have learned about Taulu basics and their judging criteria um, before the previous lectures. Today, I am going to talk about one more important aspects of Taulu events, which is compulsory movements. As you all know, Taulu events are divided into four parts, and all the events includes hand forms, hand techniques, leg technique, stances, footworks. Instead of these, we use some specific movements for event while making optional events. These movements are different for different events. Now, I am going to share my screen to all of you. At very first, I am going to show you the names of these events with their coding. Now, I'm going to share my screen. Okay, now I hope you can see my screen. These are the compulsory movements name and its codings, which is about Chanquan, Jianshu, and Kiangshu. We will go through the codings and their names. Now, the first event is Chanquan, which we call long range boxing. The first movement is Gumbu, which is called bow stance. The code is 86. Zubu, empty stance. The code is 87. Kubu, crow stance. The code is 88. Tantui, front snap kick. Code 01. Choi Tui, sideward sole kick. Code 02. Hao Sao Tui, back sweep. The code is 03. Ting Jiao, cross leg stance, which is the coding is 04. Kao Tui, ping hang, elbow strike. The code is 05. Chuan, fist. The code is 06. Chang, palm. The code 07. And Kau, hook. The code is 08. These movements are judged by group B, which is overall judges. If any of these movements is missing from the events, the group judge will be deduct the point. Being a coach, you must know how to fill the forms and what is the requirement of this event compulsory movements. The first event is Chanquan, which we call long range boxing. Remember that it is not mandatory to do these events in same sequence. Sorry, compulsory movements in same sequence. Um, the second event is Jianshu, which we call straight sword. The first movement is Gumbu, bow stance 86. Zubu, empty stance 87. Kubu, crow stance. The code is 88. Tijian, sword thrust 01. Kuajian, upward parry 02. Liao Jian, uppercut
03. Tian Jian, point with sword, 04. Chop or hack, Peng Jian, 05. Intercept, Tian Jijian, 06. And flick up with sword, यानी Peng Jian, 07. Jian Wan Hua, figure of 8, 08. ये आपने जैसे देखा जिस सीक्वेंस में इसको लिखा गया है, ये जरूरी नहीं है कि इसको सेम सीक्वेंस में इवेंट में परफॉर्म किया जाए। जो भी बच्चा इनमें से पहली मूवमेंट परफॉर्म करता है या फर्स्ट सेट में, सेकंड सेट में, जिसमें भी वो परफॉर्म करता है उसको पहले कंसीडर किया जाएगा। और आप सबको इस कंपल्सरी मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये कंपल्सरी मूवमेंट्स हम इवेंट करते हुए मिस करते हैं तो जो हमारा ग्रुप बी के जजेस होते हैं, यानी कि जो ओवरऑल देख रहे हैं, वो इसके पॉइंट्स डिडक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज क्यांगशु, विच वी कॉल स्पीयर। इन तीनों जितने भी चैन ग्रुप हैं उनमें तीनों जो स्टांसेस है, गुम्बू, जुगू एंड फुपू, तीनों सेम रहेंगे और तीनों की कोडिंग्स भी सेम रहेंगी। द नेक्स्ट मूवमेंट इज लानचियांग, आउटवर्ड ब्लॉक, नानचियान, इनवर्ड ब्लॉक, 02. चाचियांग, थ्रस्ट विद स्पीयर, 03. Chuaqiang, pierce with spear, 04. Pengqiang, tilt with spear, 05. Tianqiang, point with spear, 06. Guanhuanqiang, figure of 8, 07. Tiaoba, raise spear with arm, 08. जैसा आपने देखा ये सारे कंपल्सरी मूवमेंट्स और उसकी कोडिंग्स दी गई है। अब मैं जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपको बताऊंगी कि इसको कैसे फिल किया जाता है, जो कि एक कोच को आना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कंपटीशन स्टार्ट करते होता है तो कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने प्लेयर का ये फॉर्म फिल करके उसे कंपटीशन शुरू होने से पहले जजिंग टेबल पर इसे सबमिट करवाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं इवेंट का नाम, जो कि आप इवेंट परफॉर्म करने जा रहा है आपका प्लेयर, उसका नाम यहाँ पे होगा। देन फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 सेट जो हमारे इवेंट्स के 4 सेट होते हैं वो है। द नेक्स्ट कॉलम्स आर कंपल्सरी मूवमेंट्स एंड असेसमेंट। कंपल्सरी मूवमेंट जहां आपके द्वारा कंपल्सरी मूवमेंट्स की कोडिंग्स भरी जाएंगी, और असेसमेंट यानी कि जो कि जजेस द्वारा की जाती है। ऐसे ही आपको जैसे पहले भी मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि जो मूवमेंट बच्चा पहले परफॉर्म करेगा उसको पहले कॉलम में भरा जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान में रखनी है, बच्चे कई बार एक ही मूवमेंट को, यानी जैसे उसने फिस्ट बनाया है या पाम बनाया है, उसको बार बार कई सेट्स में रिपीट करता है, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने उस मूवमेंट को एक बार लिख दिया है तो उसको इवेंट में बाकी कितनी बार भी परफॉर्म किया जाए उसको बार बार फिल करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट वी विल गो थ्रू द चानकुआन इवेंट एंड इट्स कंपल्सरी मूवमेंट, और इसमें जो जो चीजें ध्यान में रखने वाली हैं, यानी कि उस मूवमेंट को किस तरीके से किया जा रहा है, उसमें क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रही हूँ। और मैं इनको रिपीट करूंगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में विद देयर क्लिपिंग्स, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ चानकुआन इज छुआन फिस्ट। 5 fingers are tightly clenched with the face of fist flat, thumb pressed on the second phalanges of the index and middle finger. जैसा आपको पहले बेसिक्स में भी बताया जा चुका है, मैं इसको रिपीट करूंगी ताकि आपको ये फिर से याद आ जाए, रिमाइंड हो जाए। इसमें छुआन जो कि फिस्ट होता है, इसमें सारी फिंगर्स जो होती है टाइटली क्लेंच होती है, और जो फिस्ट का सामने वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल फ्लैट होगा, यानी कि कोई भी फिंगर ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा थंब है वो इंडेक्स और मिडिल फिंगर के ऊपर प्रेस्ड होगा, ताकि हमारा जो फिस्ट है वो टाइट बनाया जा सके। इसमें ध्यान में रखने वाली चीजें क्या है, द फ्रंट प्लेन शुड बी इवन, जैसा पहले आपको बताया फ्रंट प्लेन बिल्कुल इवन होना चाहिए। द फिस्ट शुड बी टाइट, फिस्ट टाइट होगी। द रिस्ट शुड बी स्ट्रेट, जब भी हम पंच बना रहे हैं या उसको परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा रिस्ट स्ट्रेट होना चाहिए। नेक्स्ट वी विल गो थ्रू द क्लिपिंग, अ शॉर्ट क्लिपिंग, ताकि आपको ये मूवमेंट अच्छे से समझ में आ जाए। और इसको मैंने पहले स्टैटिक कंडीशन में करवाया है और फिर मूवमेंट्स के साथ करवाया है। यहाँ आप देख रहे हैं फिस्ट जो कि बिल्कुल इवन है और रिस्ट से बिल्कुल स्ट्रेट है। नेक्स्ट ये मूवमेंट के साथ आपने देखा यहाँ पे अलग अलग मूवमेंट के साथ भी किया जा सकता है, या फिर स्टैटिक कंडीशन में भी कंपल्सरी मूवमेंट को किया जा सकता है।
The next is Jhang, palm. Thumb is turned outward or bent, while the other fingers are held together and stretched backward. थंब जो है आपका बेंड रहेगा, जबकि बाकी की सारी फिंगर्स बिल्कुल खिंची हुई सीधी और बैकवर्ड पोजीशन में खिंची हुई होंगी, जिसमें आपको ध्यान में रखना है फिंगर शुड बी हेल्ड टुगेदर। चारों उंगलियां एक साथ चिपकी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जब बच्चे परफॉर्म करते हैं तो उनकी फिंगर्स ओपन हो जाती है, वो गलत माना जाता है। कंपल्सरी मूवमेंट तो कंप्लीट होती है, लेकिन ये क्वालिटी में इसका पॉइंट्स डिडक्ट हो जाता है। थंब शुड बी टर्न आउटसाइड, जो थंब है उसको स्ट्रेट नहीं रखना है, उसको बेंड करना है। नेक्स्ट इसकी क्लिपिंग है। ये पाम स्टैटिक कंडीशन में किया गया है। अब इसे मूवमेंट के साथ किया जा रहा है। नेक्स्ट इज कव, हुक। बेंड रिस्ट विद द 5 फिंगर्स हेल्ड टुगेदर। अपनी रिस्ट को बेंड करना है और अपनी सारी उंगलियों को एक साथ चिपका के रखना है। इस पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें ध्यान रखने वाली चीजें हैं, डू नॉट ओवर बेंड द फिंगर्स। फिंगर्स को बहुत ज्यादा बेंड नहीं करना है। फिंगर्स शुड बी क्लोज टुगेदर, फिंगर सारी एक साथ चिपकी होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज क्लिपिंग। ये स्टैटिक कंडीशन में हुक देख रहे हैं आप, रिस्ट बिल्कुल बेंड है और सारी फिंगर्स एक साथ चिपकी हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हुक को ऊपर की तरफ बनाया गया, तो ये गलत नहीं माना जाता, ये कंपल्सरी मूवमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। इसमें कई तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं, बस जरूरी ये है कि हमारा कंपल्सरी मूवमेंट कंप्लीट होना चाहिए। द नेक्स्ट इज गोम्बू, बो स्टांस। बेंड द फ्रंट लेग एट नी with thigh held horizontal while the rear leg is straightened, both soles flat on floor. गोम्बू स्टांस, जो कि इसका कंपल्सरी स्टांस है। आपका फ्रंट जो लेग है उसको नी लेवल तक बेंड करना है, जिसमें थाइज हॉरिजॉन्टल लेवल पर होगी और दूसरी लेग रियर लेग बिल्कुल स्ट्रेट होगी और दोनों पैरों के पंजे फ्लोर को चिपके हुए होते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, बॉडी शुड बी स्ट्रेट, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। थाई शुड बी एट हॉरिजॉन्टल लेवल, थाइज हॉरिजॉन्टल लेवल पर होनी चाहिए। फुट ऑफ द रियर लेग शुड नॉट बी ऑफ कारपेट, जो रियर लेग है यानी कि जो आपका पीछे का पंजा है उसका वो कारपेट से उठा हुआ नहीं होना चाहिए और अंदर की तरफ टर्न होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुंभू स्टांस, जिसमें इसकी थाई जो है हॉरिजॉन्टल लेवल पे बेंड है और बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है और पंजा बिल्कुल अंदर की तरफ टर्न है और लेग बिल्कुल स्ट्रेट होगी नी से। नेक्स्ट इज जुबू, एम्प्टी स्टांस। Bent one leg at knee with thigh held horizontal and heel on floor while toes of the other leg are pointed on floor. इसमें एक लेग को नी के लेवल तक बेंड करना है और थाइज जिसमें हॉरिजॉन्टल लेवल पर होगी और हील इसकी फ्लोर के ऊपर टच होगी, और जो दूसरा लेग यानी कि रेयर लेग है उसका पंजा फ्लोर के ऊपर पॉइंटेड होगा, आगे की तरफ खिंचा हुआ होगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, बॉडी शुड बी स्ट्रेट, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। थाइज शुड बी एट हॉरिजॉन्टल लेवल, थाइज हॉरिजॉन्टल लेवल पर होगी। फुट ऑफ द सपोर्टिंग लेग शुड नॉट बी ऑफ कारपेट, जिस लेग पे आपने एम्प्टी स्टांस बनाया है उसका फुट पूरा फ्लोर के साथ चिपका हुआ होना चाहिए और जो आगे अपना पॉइंटेड टो है उसका टो फ्लोर के ऊपर टच होगा। क्लिपिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल पे थाइज बेंड है और नीचे वाला फुट पूरी तरह से फ्लोर को टच है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट और आगे का पंजा प्लांटर फ्लेक्शन में यानी कि आगे की तरफ खिंचा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज Ubu, crow stance. Bend the rear leg into a full squat with buttocks close to its heel while the front leg is stretched out close to floor, both heels flat on it. Okay,
अपनी रियर लेग को, जिसके ऊपर आपने बैठना है, उसे फुल स्क्वाट में बेंड करना है। और इसके बटक जो होंगे वो बिल्कुल हील के साथ क्लोज होंगे, या फिर अंदर की तरफ खिंचे होंगे, वाइल द फ्रंट लेग इज स्ट्रेच्ड आउट क्लोज टू द फ्लोर। जबकि आपकी दूसरी लेग जो है वो फ्लोर के क्लोज होगी और बिल्कुल स्ट्रेट होगी, और बोथ हील्स फ्लैट ऑन इट, दोनों पैरों के पंजे फ्लोर के ऊपर चिपके हुए होने चाहिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर, बॉडी शुड बी स्ट्रेट, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। थाई शुड बी बिलो हॉरिजॉन्टल लेवल, इसमें थाई जो होगी आपकी बिलो हॉरिजॉन्टल लेवल होगी। फुट ऑफ द रियर लेग शुड नॉट बी ऑफ कारपेट एंड टर्न इनवर्ड, रियर लेग का जो पंजा है वो कारपेट से उठा हुआ नहीं होगा और अंदर की तरफ टर्न होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं पंजा अंदर की तरफ खिंचा हुआ है और बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है, और दूसरे लेग का जो थाइज है वो बिलो हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी कि जो इसका बटक है वो बिल्कुल काफ के साथ होना चाहिए चिपका हुआ, या फिर अंदर की साइड होना चाहिए, जैसा आप इस क्लिपिंग में देख रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट मूवमेंट इज तान तुई। तुई मतलब जितनी भी हम उसको किक्स को बोलते हैं, प्रोनाउंस किया जाता है चाइनीज में तुई, जिसको किक बोलते हैं। तान तुई, स्नैप किक। कीप द सपोर्टिंग लेग स्ट्रेट और स्लाइटली बेंट while snapping out the other leg from bend to full extension. Foot bend downward in plantar flexion with power of the kick reaching the toes. इसमें आपकी जो सपोर्टिंग लेग है वो या तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है या फिर हल्की सी बेंड हो सकती है, while snapping out the other leg from bend to full extension. जबकि जो आपकी दूसरी लेग है वो पहले बेंड होगी, कमर के लेवल तक नी को उठाया जाएगा और वहां से फुल एक्सटेंड किया जाएगा। और जो आपका फुट है जिससे आपने किक परफॉर्म किया है उसका प्लांटर फ्लेक्शन में वो खींचा हुआ होना चाहिए, और इसकी किक की जो पावर है वो इसके टो के ऊपर पहुंचनी चाहिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर, बोथ लेग शुड बी स्ट्रेट, दोनों लेग स्ट्रेट होंगी। होल बॉडी मस्ट बी स्ट्रेट, बॉडी पूरी की पूरी स्ट्रेट होगी, कमर से वो पीछे की तरफ नहीं निकली होनी चाहिए, बैक से बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। किकिंग लेग मस्ट बी वेस्ट लेवल एंड पैरेलल टू द ग्राउंड, किकिंग लेग बेस लेवल तक उठी होनी चाहिए और ग्राउंड के पैरेलल होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों लेग स्ट्रेट हैं और जो किकिंग लेग है वो बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल, और पंजा जो है इसका प्लांटर फ्लेक्शन में खींचा हुआ है। फिर से इसको देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज चॉय थुई, साइडवर्ड सोल किक। Keep the supporting leg straight or slightly bent while kicking out the other leg sideways from bend to full extension. Foot hooked and above waist level and toes turn inward with power of the kick reaching the sole. अपनी सपोर्टिंग लेग को हल्का बेंड करना है या बिल्कुल स्ट्रेट रखना है while kicking out the other leg sideways, जबकि अपनी दूसरी लेग को साइडवेज मतलब अपने साइड में बेंड से फुल एक्सटेंड करना है, जिसमें आपका पंजा जो है वो बेस लेवल से ऊपर होगा और अंदर की तरफ टर्न होगा, और इसमें जो किक की पावर है वो पूरे सोल के ऊपर दिखाई देगी। पॉइंट्स रिमेंबर, किकिंग लेग मस्ट बी स्ट्रेट फ्रॉम द नी एंड फोर्स स्विचिंग एट द हील। किकिंग लेग जो होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी और इसका पावर ये हील के ऊपर या पूरे सोल के ऊपर दिखाई देना चाहिए। किक शुड बी अबव हॉरिजॉन्टल लेवल, किक हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर होगा। अपर बॉडी मस्ट बी स्लाइटली बेंट बट इट शुड बी स्ट्रेट फ्रॉम द बैक। अपर बॉडी हल्की साइड में अपने जब हम किक मार रहे हैं तो हल्की सी साइड में बेंड हो सकती है, बट इसको कमर से बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। इसको कमर से बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, यानी कि कई बार बच्चे जब ये साइडवर्ड शोल्डर किक करते हैं तो इसकी कई बार कमर बाहर की तरफ निकली होती है, जो कि आपको ध्यान में रखना है कि बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो। हील ऑफ सपोर्टिंग लेग शुड टर्न इनसाइड व्हाइल किकिंग। जब भी हम किक कर रहे हैं तो एक बात का जरूर ध्यान में रखें कि किकिंग करते हुए हमारा जो नीचे का सपोर्टिंग लेग का जो हील है वो अंदर की तरफ टर्न होना चाहिए, ताकि किक जो हमारी है वो हमारे मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सके, क्योंकि अगर हम हील को टर्न नहीं करते हैं तो वो किक हम मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट इसकी क्लिपिंग देखें।
ये इसका फर्स्ट बेसिक था। सेकंड, आपने देखा यहाँ पे इसने किक खोली है, जैसे बेंड से पूरा एक्सटेंड किया है, जिसमें इसका पंजा अंदर की तरफ टर्न है और नीचे वाली हील जो है वो भी अंदर की तरफ टर्न होगी जब भी हम किक को उठा रहे हैं, और बॉडी अपनी साइड में हल्की बेंड हो सकती है और दोनों लेग बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। नेक्स्ट इज हाउ साउथ हुई बैक स्विप, raise the heel of the supporting leg and drop into a full squat. With a body turn, move the outstretched leg with a sweeping force in a full circle or more. Roll flat on the floor. अच्छा, जो हमारा सपोर्टिंग लेग है जिसके ऊपर हमने बैक स्विप को करना है, उसका हील पहले रेज करेंगे और फुल स्क्वाट में बैठेंगे, और अपनी बॉडी को इतनी तेजी से घुमाना है ताकि वो फुल सर्कल या फिर उससे ज्यादा सर्कल को कंप्लीट कर सके। जब हम स्वीपिंग कर रहे हैं तो हमारी जो दूसरी लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेच होंगी बाहर की तरफ, और उसका जो पंजा है फ्लोर के साथ चिपका हुआ होगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, स्वीपिंग लेग मस्ट बी स्ट्रेट एंड toes must be on the ground and heel should be raised during sweeping. जो स्वीपिंग लेग है यानी कि जो हमारी स्ट्रेच लेग है वो बिल्कुल सीधी होंगी और उसका टो ग्राउंड के ऊपर चिपका हुआ होना चाहिए, और जिस लेग के ऊपर हम स्विप कर रहे हैं उसका हील उठा हुआ होना चाहिए ताकि जब भी हम स्विप करें तो वो मूवमेंट बीच में फंसे ना और उसे स्मूथली किया जा सके। सपोर्ट ऑफ द हैंड्स विल बी टेकन ओनली वंस। आपने बैक स्विप देखी है तो उसमें आपको सबको पता है कि एक बार हाथ का सपोर्ट लिया जाता है, तो ध्यान में रखें जब भी बैक स्विप कर रहे हैं तो हैंड का सपोर्ट एक ही बार लें, बार बार उसको उठाना और लगाना ऐसा नहीं करना है। एक बार अगर आपने हाथ का सपोर्ट ले लिया है तो उसको जब तक स्विप खत्म नहीं हो जा रही है तब तक उसको बार बार उठाना और रखना, ऐसा कुछ नहीं करना है। द थर्ड पॉइंट इज प्लेयर मस्ट बी सिटिंग ऑन द काफ व्हाइल स्वीपिंग। जो प्लेयर है वो अपने काफ के ऊपर बैठा होगा जब वो स्वीपिंग कर रहा है, यानी कि जिस लेग के ऊपर बैठ कर वो स्वीपिंग कर रहा है उस काफ के ऊपर वो बैठा हुआ होगा। यहाँ पे आपने देखा इसने हाथ ग्राउंड के ऊपर टच किया है और यहीं से वो स्विप को यानी कि जो जिस लेग से स्विप करना है उसको फोर्सफुली बाहर की तरफ घुमाएगी ताकि स्विप कंप्लीट की जा सके। ये देखा आपने स्विप को, जिसमें हील नीचे वाले पंजे की जिसके ऊपर वो बैठी हुई है उसका हील उठा हुआ है और दूसरी लेग का पंजा जो है वो फ्लोर के ऊपर टच है, और ध्यान में रखना है कि जब तक स्विप कंप्लीट नहीं हो जाती वो पंजा फ्लोर को छोड़ना नहीं चाहिए। द नेक्स्ट इज टिंग जाओ elbow strike. Bend arm at elbow and form a fist. Palm side down, strike with the forward or sideward thrust of the elbow with power reaching its point. अपनी एक हाथ को की एल्बो को बेंड करना है और एक फिस्ट बनाना है, और जबकि दूसरे हाथ का पाम बनाते हुए इसको आगे की तरफ या फिर साइडवर्ड थ्रस्ट करना है, जिसमें जो पावर होगी आपकी वो एल्बो के ऊपर यानी कि इसके पॉइंट के ऊपर शो होगी। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ध्यान में रखने वाली चीजें जो है, एल्बो शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड। जब भी हम थ्रस्ट कर रहे हैं तो हमारा एल्बो ग्राउंड के पैरेलल होगा। एल्बो शुड नॉट बी ओपन, एल्बो ओपन नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्राइक साइडवर्ड में किया गया है जिसमें एल्बो इसकी बिल्कुल बेंड है और एक हाथ का पाम बनाया गया और एक का पंच बनाया गया और इसको स्ट्राइक किया गया है। अगर यहाँ पे आप पैरों की भी मूवमेंट इस स्ट्राइक के साथ यानी कंपल्सरी मूवमेंट के साथ अगर आप इसको कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि हाथ और पैर दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट इज काउतुई पिंग हैंग क्रॉस लेग बैलेंस। Bend the supporting leg and drop into a half squat. Kneel close to horizontal level. Bend the other leg at knee and tuck the hook foot behind the knee of the supporting leg. अपने सपोर्टिंग लेग को हाफ स्क्वाट में बेंड करना है और अपना जो नी है उसको हॉरिजॉन्टल लेवल तक बेंड करते हुए और दूसरी लेग का पंजा वो नी के ऊपर हुक करना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, rear leg will bend in half squat position.
जो रियर लेग है जिसके ऊपर क्रॉस लेग बैलेंस किया जा रहा है वो हाफ स्क्वाट पोजीशन में होगा. सपोर्टिंग लेग विल मेक हुक बाय दिस फुट एंड एंकल एट द बैक साइड ऑफ द रियर लेग्स नी. सपोर्टिंग लेग जो होगा उसका फुट बिल्कुल हुक होगा जो आपका स्क्वाटिंग लेग है उसके नी के पीछे. बॉडी मस्ट बी स्ट्रेट, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होगी. ये क्रॉस लेग बैलेंस जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हुक इसका एक जो फुट है वो हुक किया गया है और नीचे वाला पैर जो है वो आपका पूरी तरह से ग्राउंड को टच होगा. हील उठी हुई नहीं होनी चाहिए, बैक बिल्कुल स्ट्रेट होगी. क्रॉस लेग बैलेंस को मैथमेटिकल पॉज के रूप में यूज किया जाता है इवेंट के अंदर. अभी मैं जो भी आपको कंपल्सरी मूवमेंट्स मैंने आपको पीछे स्लाइड्स में बताई हैं उससे रिलेटेड एक इवेंट्स दिखाने जा रही हूँ जिसमें सारी कंपल्सरी मूवमेंट की गई है. तो आपको पॉज कर करके मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे कौन कौन सी मूवमेंट कंप्लीट की गई है कंपल्सरी मूवमेंट. यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट कंपल्सरी मूवमेंट जो कि पाम झांग जिसको बोला हमने वो यहाँ पे कंप्लीट होती है जिसको माबू के साथ कनेक्ट करके किया गया है. तो ये जरूरी नहीं है कि ये सेम मूवमेंट के साथ बार बार कनेक्ट किया जाए, इसको किसी भी मूवमेंट के साथ कनेक्ट करके कर सकते हैं या फिर एक स्टैटिक कंडीशन में भी किया जा सकता है. आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट कंपल्सरी मूवमेंट कंप्लीट हुई है पाम. यहाँ पे सेकंड जो स्टैंपिंग की इसने वहां पे पंच का इस्तेमाल किया जो कि इसकी सेकंड कंपल्सरी मूवमेंट है. थर्ड हुक, यहाँ पे देख रहे हैं आपने हुक बनाया हुआ है इन्होंने जंप्स करने से पहले. तो ये थर्ड इसकी कंपल्सरी मूवमेंट कंप्लीट हो रही है यहाँ पर. स्नैप किक, यहाँ पे आपने देखा नेक्स्ट कंपल्सरी मूवमेंट जिसको इसने क्रॉस लेग बैलेंस के साथ कनेक्ट करके किया है. यानी कि पहले स्नैप किक मारी और उसके साथ कनेक्टिविटी में इसको क्रॉस लेग बैलेंस को किया गया. इसको आप सिंगल भी परफॉर्म कर सकते हैं या फिर कनेक्ट करके भी परफॉर्म कर सकते हैं. बस ये ध्यान में रखना है कि जो भी मूवमेंट के साथ इसको कनेक्ट करके कर रहे हैं वो बिल्कुल स्मूथली की जा सके. नेक्स्ट यहाँ पे साइडवर्ड सोल किक. यहाँ पे आपने देखा दो कंपल्सरी मूवमेंट्स यानी कि एक कॉम्बो स्टांस और एल्बो स्ट्राइक दोनों को कनेक्ट करके किया गया है. बैक स्विप एंड फुगू यानी कि दो और कंपल्सरी मूवमेंट जो कि चांद पॉइंट के कंपल्सरी मूवमेंट फुगू और बैक स्विप दोनों एक और एक साथ कंप्लीट किए गए हैं और बिल्कुल स्मूथली किए गए हैं. द लास्ट वन इज एम्प्टी स्टांस. यहाँ पे इसकी सारी कंपल्सरी मूवमेंट कंप्लीट होती है. और आपने एक चीज और ध्यान में दी थी इसने पंच और पाम कई बार इवेंट में यूज किए हैं. तो ध्यान में रखना है जब भी आप फॉर्म को फिल करें उसको जो फर्स्ट टाइम मूवमेंट कर दी गई है यानी कि एक बार अगर फॉर्म कर दिया गया है तो उसको एक बार ही फॉर्म में लिखना है, बार बार नहीं लिखना है. The next we will go to the Jianshu.
which is called straight sword. The first movement is Si Jian, sword thrust. Thrust forward, arm aligned with the sword, force reaching its tip. स्वॉर्ड को आगे की तरफ थ्रस्ट करना है, जिसमें आर्म जो होगी स्वॉर्ड के साथ बिल्कुल अलाइंड होगी, यानी कि एक लाइन में होगी। फोर्स इसका टिप के ऊपर पहुंचना चाहिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर, हैंड विल रेज अप टू द शोल्डर लेवल। जब भी हम थ्रस्ट कर रहे हैं तो ध्यान में रखना है कि हैंड अपना शोल्डर लेवल तक अप होगा। शोल्डर, एल्बो एंड स्वॉर्ड मस्ट बी इन अ सिंगल लाइन। शोल्डर, एल्बो और स्वॉर्ड एक सिंगल लाइन के अंदर होगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में होगा। थ्रस्ट विल बी शो एट द फ्रंट साइड ऑफ द स्वॉर्ड। थ्रस्ट जो है स्वॉर्ड का फ्रंट साइड, यानी कि जो भी हल्का वाला पार्ट होता है स्वॉर्ड का, वहां पे शो होगी। Okay, next movement is Quajian, upward parry. Move the sword upward in a vertical circle in front, then backward or downward, force reaching the foible. स्वॉर्ड को अपवर्ड सर्कल में, वर्टिकल सर्कल में अपने आगे से घुमाते हुए लेके जाना है, जिसमें वो पहले बैकवर्ड और फिर डाउनवर्ड पोजीशन में जाएगा, जिसमें इसका जो फोर्स है वो फॉइबल के ऊपर, यानी कि जो तलवार का हल्का वाला पार्ट होता है वहां पे दिखता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, while doing the upward parry, upper body will slightly bend in the same side from where the sword will move. जैसा अपवर्ड पैरी जब भी हम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी सेम डायरेक्शन में, जहां हमारी स्वॉर्ड मूव कर रही है जिस डायरेक्शन से, उस डायरेक्शन में हल्की बेंड होती है ताकि मूवमेंट स्मूथली हो सके। ग्रिप ऑन द स्वॉर्ड मस्ट बी एट 90 डिग्री, यानी कि जो हमारा रिस्ट है और स्वॉर्ड है उसके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, ताकि ये तलवार फ्लोर को टच ना हो। मूवमेंट ऑफ द स्वॉर्ड मस्ट बी इन अ वर्टिकल सर्कल। स्वॉर्ड की मूवमेंट वर्टिकल सर्कल में होनी चाहिए। मूवमेंट शुड बी सॉफ्ट एंड फास्ट, मूवमेंट सॉफ्ट और फास्ट होगी। नेक्स्ट इसकी क्लिपिंग देख लीजिए। वर्ड पैरी है जिसमें एंगल इसका 90 डिग्री का बना हुआ है और बॉडी साथ में चल रही है। द नेक्स्ट इज लियाओजियान, अपर कट। मूव द स्वॉर्ड इन अ फॉरवर्ड अपवर्ड वर्टिकल सर्कल, फोर्स रीचिंग द फॉइबल। अपनी जो स्वॉर्ड है उसको फॉरवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल सर्कल में मूव करना है, जिसमें इसका फोर्स जो है फॉइबल यानी कि स्वॉर्ड के हल्के वाले पार्ट पे शो होगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, एंगल बिटवीन स्वॉर्ड एंड ग्रिप मस्ट बी डिग्री। इसमें भी जैसे आपको पिछले मूवमेंट में बताया गया है, रिस्ट और स्वॉर्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। द मूवमेंट शुड बी सॉफ्ट एंड वेरी फास्ट, मूवमेंट सॉफ्ट और फास्ट होगी। ये अपर कट आप देख रहे हैं। नेक्स्ट इज Tianjian, points with sword. Pull wrist back to erect the sword and then point it suddenly downward in front, force reaching its tip. अपनी रिस्ट को पहले पीछे की तरफ खींचना है और फिर इसको सडनली आगे की तरफ डाउनवर्ड पोजीशन में पॉइंट करना है स्वॉर्ड को, जिसमें इसका फोर्स जो है इसके टिप के ऊपर पहुंचेगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, रिस्ट मस्ट बी बेंट इन डाउनवर्ड पोजीशन विद स्वॉर्ड पॉइंटिंग डाउनवर्ड। रिस्ट डाउनवर्ड पोजीशन में बेंड होगी, जिसमें स्वॉर्ड जो है वो डाउनवर्ड पोजीशन में पॉइंट किया होगा। फोर्स मस्ट बी रीचिंग एट द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्लेड। जो फोर्स है इसका स्वॉर्ड के फ्रंट पार्ट के ऊपर शो होगा। यहाँ पे आपने देखा पहले स्वॉर्ड को पीछे की तरफ खींचा गया और फिर सडनली उसको आगे की तरफ पॉइंट किया गया डाउनवर्ड पोजीशन में। यहाँ पर रिस्ट बेंड होगी ताकि जो तलवार का टिप है वो नीचे की तरफ पॉइंटेड हो सके। द नेक्स्ट इज Pijian, chop or hack with sword. Erect the sword vertically and chop downward, force reaching the blade. Pijian, chop और hack जो है ये अटैकिंग के लिए यूज किया जाता है। इस स्वॉर्ड को पहले वर्टिकल पोजीशन में घुमाते हुए फिर नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड पोजीशन में चॉप करना है, जिसमें इसका जो फोर्स है वो ब्लेड के ऊपर शो होगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, power will show from middle part of the blade.
जो इसका पावर है वो ब्लेड का जो मिडल पार्ट होता है स्वॉर्ड का उसके ऊपर शो होगा। मूव द स्वॉर्ड वर्टिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड अपवर्ड टू डाउनवर्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। अपनी तलवार को वर्टिकली मूव करना है, पहले लेफ्ट से राइट और फिर डाउनवर्ड अपवर्ड से डाउनवर्ड पोजीशन में। यहाँ पे आपने स्टैटिक कंडीशन में इस मूवमेंट को देखा और अब इसको मूवमेंट के साथ किया जा रहा है। Next is Ji Jian, intercept with sword. Block and strike out obliquely, up or down, force reaching the foible. Block और strike. इसको दोनों चीजों के लिए यूज किया जाता है इस मूवमेंट को। पहले ब्लॉक करेंगे और फिर स्ट्राइक करेंगे जो कि एक ऑब्लिक पोजीशन में होगा या फिर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ये दोनों तरीके से की जा सकती है। फोर्स रीचिंग द फॉइबल, फोर्स इसकी तलवार के आगे वाले पार्ट पर शो होगी। पॉइंट्स टू रिमेंबर, while doing the intercept with sword, blade will block a front part of the body, simultaneously strike downward or upward in oblique position. जब भी हम इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो पहले जो हम ब्लेड होगा तलवार का वो पहले हमारे बॉडी के फ्रंट पार्ट को ब्लॉक करेगा और इन द सेम टाइम वो तलवार से स्ट्राइक करेगा या तो डाउनवर्ड पोजीशन में या अपवर्ड पोजीशन में, जिसमें हमारी तलवार ऑब्लिक होनी चाहिए। दिस मूवमेंट इज यूज्ड एज ब्लॉकिंग एंड अटैकिंग। ये मूवमेंट ब्लॉक और अटैक दोनों चीजों के लिए यूज की जाती है। ड्यूरिंग द ब्लॉकिंग मूवमेंट द फेस ऑफ द ग्रिप विल बी फेसिंग अपवर्ड। जब भी हम ब्लॉक कर रहे हैं तो जो हमारा ग्रिप होगा उसका फेस यानी कि हमारा हाथ जो होगा ऊपर की तरफ टर्न होगा एंड इन अटैकिंग मूवमेंट द ग्रिप विल बी फेसिंग डाउनवर्ड। और जब हम अटैकिंग पोजीशन में जाएंगे तो अपने रिस्ट को टर्न करेंगे और इसका जो ग्रिप का फेस है वो डाउनवर्ड पोजीशन में आता है और अटैक किया जाता है। यहाँ पे आप मूवमेंट को स्लो में भी देखेंगे और फास्ट में भी। ये आपने देखा पहले इसने अपनी बॉडी के फ्रंट पार्ट को ब्लॉक किया और फिर ऑब्लिक डायरेक्शन में अपवर्ड पोजीशन में इसे अटैक किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जब ब्लॉकिंग की गई है तो जो हमारा रिस्ट है वो ऊपर की तरफ टर्न है। अटैकिंग के टाइम में इसको टर्न करते हुए नीचे की तरफ किया जाएगा, जिसका पाम साइड जो होता है वो डाउन होगा। आपने इस मूवमेंट को देखा दोनों तरीके से किया गया, अपवर्ड पोजीशन में भी स्ट्राइक की गई है और डाउनवर्ड पोजीशन में, ये दोनों तरीके से की जा सकती है। द नेक्स्ट इज पेंगजियांग, flick up with sword. Pull wrist back to flick up the sword suddenly, force reaching its tip. अपनी रिस्ट को पुल करते हुए स्वॉर्ड को फ्लिक करवाना है जिसमें फोर्स होगी जो इसके टिप के ऊपर होगी। पॉइंट्स टू रिमेंबर, while doing this movement, wrist will pull the sword vertically in upward direction and angle between sword and wrist must be 90 degree. जब भी ये मूवमेंट हम कर रहे हैं तो रिस्ट को पीछे की तरफ खींचना है जिसमें स्वॉर्ड जो होगी वर्टिकल पोजीशन में होगी और जो स्वॉर्ड और हमारी रिस्ट है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा। फ्लिक मस्ट बी पावरफुल एंड जर्की, फ्लिक पावरफुल और जर्की होना चाहिए। फोर्स मस्ट बी शो एट द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्लेड, जो तलवार की फोर्स है वो फ्रंट पार्ट के ऊपर शो होगी। यहाँ पे देखिए तलवार जो है वर्टिकल पोजीशन में है और दोनों तलवार और रिस्ट के बीच का एंगल 90 डिग्री का है। नेक्स्ट इज जियान वान हुआ, फिगर ऑफ फेट। With wrist as pivot, move the sword in forward downward vertical circle on both sides, close to your body, force reaching tip of the sword. अपने रिस्ट को आधार बनाते हुए यानी कि उसको धुरी बनाते हुए स्वॉर्ड को फॉरवर्ड और डाउनवर्ड पोजीशन में वर्टिकली मूव कराना है जो कि बॉडी के बिल्कुल
क्लोज चलेगी और बॉडी के दोनों साइड में चलेंगी। और फोर्स जो है इसका हिप के ऊपर होना चाहिए। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, sword will move forward downward vertically close to the body। sword फॉरवर्ड और डाउनवर्ड वर्टिकली मूव करेगी जिसमें ये बॉडी के बिल्कुल क्लोज होगा। मेक रिस्ट एज एक्सिस एंड sword will move around the axis। अपने रिस्ट को एक्सिस बनाते हुए तलवार को एक्सिस के चारों तरफ यानी कि अपने रिस्ट के चारों तरफ घुमाएंगे। To move the sword vertically swiftly around the wrist and arm, we keep our body straight and static condition। जब भी हमने तलवार को वर्टिकली और तेजी से घुमाना है रिस्ट के चारों ओर, तो हमें हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और स्टैटिक कंडीशन में रखनी है। यहाँ पे आपको मूवमेंट फिगर ऑफ इट जो कि एक स्टैटिक कंडीशन में दिखाया गया है, लेकिन इसमें भी कई तरह के वेरिएशंस है। जब भी हम ऑप्शनल इवेंट करते हैं तो ये मूवमेंट के साथ किया जाता है। नेक्स्ट इज बूजिंग यानी कि स्टांसेस। गोम्बू, बो स्टांस, फूबू, क्राउ स्टांस एंड जुगू एम्प्टी स्टांस। जो कि चांगक्वान में तीन कंपल्सरी स्टांसेस थे, वो सेम कंपल्सरी स्टांसेस इसमें भी की गई हैं। नेक्स्ट इज फूबू। नेक्स्ट मैं रिलेटेड वीडियो दिखाऊंगी जियांशु की, आपको कंपल्सरी मूवमेंट बता दी गई है और वो सेम जैसे आपको चांगक्वान की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था वैसे ही इसमें एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें सारी कंपल्सरी मूवमेंट की गई है। यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट मूवमेंट जो इसने की है वो पॉइंट, शॉर्ट को पॉइंट किया है। नेक्स्ट फिगर ऑफ इट। थ्रस्ट जो कि जंप से बिल्कुल पहले की गया है। नेक्स्ट मूवमेंट इज, ये आपने देखा चॉप और हैक, इसने क्रॉस लेग बैलेंस से जस्ट पहले चॉप और हैक परफॉर्म किया जो कि कंपल्सरी मूवमेंट है। यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया है। द नेक्स्ट कंपल्सरी मूवमेंट अपवर्ड पैरी। अपर कट, आप देख रहे हैं यहाँ पे अपर कट कर रहा है जो कि लेग्स की और हैंड की मूवमेंट्स एक साथ की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे फूबू स्टांस, एक और कंपल्सरी मूवमेंट। लास्ट वन इज जुगू स्टांस, एम्प्टी स्टांस जो किया गया है, ये भी एक कंपल्सरी मूवमेंट है। आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से इसको मूवमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करवा के किया गया है। तो इसमें आपने वेरिएशंस भी देखे। जैसे मैंने आपको मूवमेंट्स आपको पिछली स्लाइड्स में बताई वो बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन में बताई थी, लेकिन जब भी हम इवेंट कर रहे हैं तो उसको किसी मूवमेंट के साथ कनेक्ट करके किया जा सकता है और स्मूथली किया जा सकता है। ओके,
थैंक यू। मेरा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा, कंपल्सरी मूवमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे इवेंट्स को बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई क्वेरीज या कोई डाउट है तो वो अपना हाथ रेज करे। वी विल टेक अप क्वेश्चंस accordingly one by one. Yes, Himanshu, please ask. सर गुड आफ्टरनून। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। जी जी बताइए। सर ये कोई भी प्लेयर जो है वो बैक स्वीप कर सकता है सर नन ग्रुप में? जी कह एक बार फिर से रिपीट करिए। सर नन ग्रुप में कोई भी जो प्लेयर है वो बैक स्वीप यूज कर सकता है नन इवेंट में? ऑप्शनल इवेंट में? जी जी। ऑप्शनल इवेंट में तो बैकफ्लिप उनकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। Yes, Nagesh, ask. Nagesh, can you hear me? जी सर। सर मैंने तो रेज हैंड किया ही नहीं था सर। सर कोई क्वेश्चन नहीं है सर, अच्छा लगा सर टॉपिक। थैंक यू सर। कल के लिए मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं। कल जो है चाइनीज लेक्चरर हैं हमारे शंघाई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जुल्फा वैंग। कल उनका लेक्चर है, तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दिखाएं और उनको सुने, वो क्या अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है वो देना चाह रहे हैं। तो रेस्ट ऑफ माय वॉइस, थैंक यू वन एंड ऑल।